श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। प्रथम द्वितीय के बाद तृतीय पहर की सेवा का शुभारंभ है। तृतीय पहर यह दिन का 6 से 9, 9 से 12 द्वितीय पहर, और 12 से 3 का ये तृतीय पहर है। तृतीय पहर मतलब 12 से 3 कि ज्यारथी भक्ति सीजन शरूआत अपना निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आम तो दरेक माटे छे कि 12 महीना, अने 12 महीना ने अंदर में पण सीजन होय ने। कापड़ना दुकान एमने पूछे कि भाई सीजन क्या रहे? જ્યારે લગ્ન હોય ત્યારે, દિવાળી આવે ત્યારે છે। એ જ રીતે સાધના ભક્તિ કરવા માટે, સાધના કરવા માટે પણ 12 મહિનામાં દરેક મહિનાઓમાં આટલી બધી શક્તિ નથી। सिलेक्टेड महीना, कुछ चुने गए ऐसे महीने हैं कि जिसमें भक्ति होती है। इस निजानंद संप्रदाय में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भक्ति करने का शुभारंभ दिन किया था आषाढ़ सुद बीज से। वृक्ष का रोपण कर दिया उन्होंने, करते जाओ करते जाओ, और फिर हम लोग आनंद लेते हैं शरद पूर्णिमा तक, खूब आनंद आता है। और इतना आनंद आ जाता है कि फिर दीपावली के समय में आनंद लेते लेते शरद पूर्णिमा का भी आनंद लिया, फिर उसको फिर पचाना शुरू करते थे, दीपावली तक उसको रख लेते घर। पैसा कमाते हैं सीजन में, तो कमाने के बाद में उस पैसे को व्यवस्थित करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जो अब तक पारायण पाठ किया गया, तीर्थ यात्रा हुआ, भजन भक्ति कथा श्रवण, तो पूनम तक चलता, और पूनम के बाद में जो भी कुछ आया उसको बटोर बटोर कर रखते हैं। 15 दिन लग जाता है दीपावली के बाद, फिर फुर्सत। इसके बाद में दुनिया का काम शुरू होता है। એટલે અહીંયા નાના છોકરાઓ એમના માટે એમના પેરેન્ટ્સ પણ એમ જ કહે કે મારા છોકરાઓને હવે આજથી અને દિવાળી સુધી કંઈ કહેવાય નહીં ભણવા માટે। બોલે કેમ ભાઈ? કઈ રીતે કહેવાય? સત્સંગ ચાલુ હોય, ભજન ચાલુ હોય, બીતક 1 મહિના સુધી ચાલે। તો એક જિજ્ઞાસા સુંદર સાજીની અંદરમાં આ વખત વલસાડમાં રહીને ખરેખર સુંદર સાતને હૃદય સુધી પહોંચીને હું જોયું। અને ત્યાર પછી ઉંમરના જે છે એમને થોડું વાણીના જો ઉડાણવાળા મળે ને ગહેરાઈ, જેમ હું ઘણા વખત કહું કે પાણી હોય ને તો પાણીના 3 ભાગ હોય। ઉપર સતહ જેને કહેવામાં આવે, તૈરતા હોય, આનંદ આવે છે આમાં। અને ત્યાર પછી ઉપર પણ નહીં અને બિલકુલ જમીન ઉપરમાં પણ નહીં, વચ્ચે જે આમ જાય ને એ મધ્ય ભાગ, એમાં થોડું વધારે આનંદ આવે। અને ત્યાર પછી જે તહ એટલે નીચલી સતહ ઉપરમાં જ્યારે જાય તો ઘણું આનંદ આવે। આ રીતે વાણીમાં પણ છે। મેહર સાગરને પાઠ કરવામાં પણ ઘણું આનંદ છે। અને મેહર સાગરને તમે સમજો તો પછી 50%, 50% વધારે આનંદ છે। અને મેહર સાગરને અર્થ સમજીને ચિંતન તમે કરો પાઠ કરતા કરતા, અને એ દૃશ્ય દેખાય તો 100% લાભ છે। તો જે અમારા બુજુર્ગ સુંદર સાથ જે અત્યાર સુધી વલસાડ મંદિરના 150 કે 200 વર્ષ થયા હશે નિર્વાણમાં, અને તે વખતની પરંપરાથી વિતકથા, વાણી ચર્ચા, આમ તો જ્ઞાનનું ભંડાર જ કહેવાય વલસાડ,
અને પીઢી દર પીઢી જે શ્રવણ કરતા એવા છે કેટલા મોટા મોટા સંત અને વિદ્વાનો, એ સંત અને વિદ્વાનોના મુખારવિંદથી વાણીના ગૂઢ રસ જે શ્રવણ કરી ગયા હોય અને એવા સુંદર સાતને જરાક એ નીચલી સતહની વાત સાંભળવાનું મળતા હોય ને, એ ખુશ થઈ જતા હશે અને હૃદયથી મને આશીર્વાદ આપતા હશે કે હા. અને એ ખરેખર કથાની વાત તો બીજી વાત છે. મારી પણ ઘણા વખત ઈચ્છા થાય કે સુંદર સાતની જે ભક્તિ છે, સુંદર સાતનો જે પ્રેમ છે, સુંદર સાત ખુશ થઈને આપણને આપે ને, તો આપણે એક આપીએ છીએ, પણ આપણને આપનાર કેટલા હજારો સુંદર સાત, અને બહુ વધારે નહીં આપે ને, 5% પણ આપે ને, તો કેટલું થવાના મારા પાસે. એટલે આશીર્વાદ પણ મને મળે છે. એટલે હું ઘણો ખુશ છું. બહુ આનંદ છે વલસાડમાં. અને એવા વલસાડના સુંદર સાજી બપોરે જમીને આ ટાઈમમાં સૂઈ જતા હશે એવું નથી માનતો, કેમ કે આ તૃતીય પહરની વાત છે. અક્ષરાતીત ધામધની મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ જે પદ્માવતી પુરી ધામ, પવિત્ર ધામ, જે અક્ષરાતીતને હૃદયમાં નૌતનપુરી જામનગર પણ છે, મહામંગલપુરી સુરત પણ છે, પદ્માવતીપુરી પન્ના પણ છે. પણ જે પન્નાની વિતક સંદર્ભમાં વાત થઈ રહી છે તે ટાઈમમાં, જેવું તમને સુરતના સંદર્ભમાં પણ સંભળાવ્યું ને, કે સુરતની જે ગાદી છે ખરેખર અક્ષરાતીતના હૃદયમાં, અને ત્યાર પછી જે અહીંયા પણ કાલે કે પરમદારે ચોપાયું ને કે નકલ કે નકલ કા, એ જ રીતે મેં પ્રતિબિંબ કે પ્રતિબિંબ કા તિનકા હોત એ હાલ. જો અસલના ડાયરેક્ટ પ્રતિબિંબ છે એ પણ નથી અહીંયા, એ પ્રતિબિંબના પ્રતિબિંબ થઈને. તો અક્ષરાતીતના હૃદયની અંદરમાં જે 5મા દિવસની લીલા હતી, મહેંદીની લીલા, એ ટાઈમમાં અક્ષરાતીત મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ દ્વારા જે સ્થાપિત મહામંગલપુરી ધામમાં જે ગાદી છે, જે ધામ છે, એ અક્ષરાતીતના હૃદયમાં છે. ધન્ય શ્રી દેવીચંદજી મહારાજ દ્વારા સ્થાપિત જામનગરમાં જે શ્રી 5 નૌતનપુરી ધામ, એ પણ અક્ષરાતીત ધામધનીના હૃદયમાં છે. ત્યારે તમે વાણીમાં સાંભળી ગયા ને, આએ આગમબાની ઇત મિલે જાય વિશ્વમુખ કરત વખાન, કે જે આ 4 સ્તંભની વાત થઈ, બ્રજરાસ અને પછી આ બ્રહ્માંડમાં તે કીધું કે બીજા 2 જે છે આ બ્રહ્માંડમાં નૌતનપુરી ધામ, પદ્માવતી, અને ત્યાર પછી બચ્ચે એક ચોड़ी महामंगलपुरी धाम. तो ये जो यहाँ पे लीला हुई, इसमें जो नौतनपुरी पद्मावतीपुरी ये भी राज्य के हृदय में है, और जागनी पीठ महामती प्राणनाथ जी महाराज द्वारा जो स्थापित ये भी अक्षरातीत के हृदय में ही है, वहां से प्रतिबिंबित. 5वें दिन की 6वें दिन की भी जो पद्मावतीपुरी की लीला है वह भी उसी अक्षरातीत के हृदय में था और वहीं से प्रतिबिंबित हुई. और ऐसे पवित्र धाम में महामती प्राणनाथ जी महाराज आनंद देने के लिए, रस पिलाने के लिए आए हैं. तो जब दोपहर के 12 बजे का भोजन हो गया तो भोजन करने के बाद में क्या करेंगे, वो सो जाएंगे. अक्षरातीत धाम धनी जब सो गए थे ना परम धाम में 12 से 3 के समय में, तो दिल में लेकर सो गए थे कि आज जो अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म प्रियाओं की जो वार्तालाप हुई, एक दूसरे को नेत्र से नेत्र मिल जाने के कारण हुआ था ना, अक्षर ने ब्रह्म प्रियाओं को देखा, ब्रह्म प्रियाओं ने अक्षर को देखा, और दोनों को देखने के बाद जो राज्य महाराज के साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का जो संवाद हुआ, पहला तो एक ग्रुप का, एक जुथ पत्नी का हुआ, और जब 10:30 बजा तो उस समय में सभी ब्रह्म प्रियाएं आ गए तीजी भूमि के परसाल पे, और फिर वो बात शुरू हो गई, जिसमें एक ग्रुप 300 सुंदर साथ ही देख पाए थे अक्षर को. अब वहां पे 10:30 बजे बैठ करके सबको पता चल गया कि तीसरी भूमि परसाल में आज इस तरह की बात हुई. फिर भुला दिए. भोजन लीला के बाद में जब राज्य सो गए तो उस समय में उन्होंने वही बात दिल में लेकर के सो गए. कौन सी बात, कि आज जो प्रातः काल तीसरी भूमि परसाल पे
जो घटनाएं हुई, जो दृश्य वहां पे एक दूसरे ने देखा और दोनों के अंदर में जो इच्छा उत्पन्न हुई, उन दोनों की इच्छा को लेकर के राज्य महाराज सो गए। राज्य महाराज तीसरी बोम पाठशाला में दोपहर भोजन लेने के बाद में विश्राम में गए, पर वो बात लेकर के गए और उस बात को लेकर के गए, उन्होंने अपने दिल में रखा। उनके दिल श्यामाजी महाराज के 12,000 टोली उनके दिल, और राज्य ने जो दिल में ले ली बात, और जैसे ही ब्रह्म प्रियाएं वहां से आई है तो वहां जो अलग अलग टोली बना के गए थे 12 बजे भोजन कर लेने के बाद, तो हर टोली के सुंदर साजी के हृदय में ये बात आ गई अब कि आज जो धाम धनी से बात हुई थी, और इस समय हम लोग जब जाएंगे 3 बजे, तो 3 बजे जाकर के यही उनसे प्रार्थना करनी है कि धनी आज हमें वह खेल दिखाने के लिए ले चले जो अक्षर बनाया बिटाया करता है खेल। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत वही बात लेकर के और विश्राम कक्ष में गए हैं, इसलिए वो होना है। इस धरती पे भी पद्मावतीपुरी धाम में भोजन करने के बाद अक्षरातीत धाम धनी के अंदर में एक ही इच्छा है। ज्वरा जी का परम धाम में एक काम, वही प्राणनाथ जी के यहां पर एक काम, अनेक काम नहीं है, एक ही काम है। क्योंकि जो अनेक काम था ना, वो धोए हाथ हथियार हो गया सब काम पूरा, पर एक ही काम है इश्क पिलाना, परम धाम में भी पद्मावतीपुरी धाम में भी। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज की जब भोजन लीला हो गई तो वो क्या करेंगे, शरीर होगा उनका पलंग पे। भोजन लीला हो जाने के बाद में सारे सुंदर साज जी ले गए पलंग पे, पर जिस तारतम के अवतार है, जो इनका उद्देश्य है रस पिलाना, उस उद्देश्य को लेकर के सोए हैं, इसलिए आंख में नींद आएगी। जब वो खुद कह रहे थे वहां दीप बंदर में, जयराम ने कहा कि बहुत अच्छी बात, भोजन प्रसाद हो गया, अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए, तो क्या कहा था महामती प्राणनाथ जी ने, हम नहीं आए सोबन काज, सोने के लिए हम आए नहीं। तो जब वहां वो सो नहीं सकते थे एक सुंदर साजी को जागृति के लिए, तो आज यहां पे हजारों सुंदर साथ है, उनकी जागृति करनी है, तो वो सोएंगे। दिन की तो क्या बात है, रात में भी नहीं सोएंगे। यदि वो सो लेते हैं तो सही में वो अक्षरातीत धाम धनी नहीं होंगे, वो ब्रह्म नहीं होंगे, निष्कलंक बुद्धा अवतार। सोते नहीं, काल उनके समय, उनके बंधन में, वो काल के बंधन में नहीं है। नींद उनके बंधन में है, वो नींद के बंधन में नहीं है। ऐसे अक्षरातीत धाम धनी, इसलिए वे धाम के धनी सोते नहीं, पर एक सुंदर साजी को लीला करनी है ना उनको, क्योंकि वही लीला को चिंतन करना है हमें। आज बीतक में जो हम सुन रहे हैं धनेश्वर देव चंद जी महाराज की लीला, महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो लीला हुई, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस उन लीलाओं को एक रूप देने के लिए ये सब वहां पे किया जाता था कि भोजन करने के बाद श्री जी महाराज विश्राम कक्ष में पलंग पे गए और आराम कर रहे, पर आंख बंद नहीं होती, नींद नहीं आती, क्योंकि वो ब्रह्म है। नींद क्यों आएगी, माया क्यों आएगी। हर सुंदर साथ अपने अपने सेवा में तैयार थे। जब आप आए हैं तो उस समय कह रहे कि चरना लेके आया प्रेमदास पहनावन, नंद राम पीछे खड़ा ले गोटा कंढपी खलतन, क्योंकि ठंडी है, उम्र अधिक हो गई। और ये सारे वस्त्र ला करके, एक से एक गर्म वस्त्र ला करके श्री जी महाराज को पहना दिया जाता है, पाँव में पनही पहना करके। इसके बाद उनको मीठी बातें रसना सुख करे, देत निज धाम के सुख, पलंग पे बैठे भी सुख भी दे। सेवा अंग स्पर्श की बीरो आन करत, सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। जब नींद नहीं आती है ना, तो कुछ लोगों का ये मंतव्य है कि उनको शरीर दबाया जाए धीरे धीरे तो भी नींद आ जाती है, माथे पे सहलाया जाए तो भी नींद आ जाती है। तो आप श्री जी महाराज उस अवस्था में है, जब सुंदर साथ जी देखते हैं कि आंख बंद नहीं हो रही है, तो सुंदर साथ आकर के उनको चरण स्पर्श करते हैं, धीरे धीरे दबाते। और उसी समय में जी सिर आगे धरे श्री राज, मारो टपले पौढ़न बखत पलंग पर, इन समय आन पहुंचे। दो चीजें है, जीजी और बड़ी जीजी। ज्યાં जीजी आवे ए जग्या महामती प्राणनाथ जी महाराज ने मेहराज ठाकुर ना सास जी,
श्री बैजूराज महारानी के मातोश्री। और जहां पे 2 आएगा एक ही चौपाई में, तो इसके फिर उनके लिए हो जाएगा बड़ी जीजी और इनके लिए हो जाएगा जीजी। तो श्री बैजूराज महारानी को सारे सुंदर साज जो हैं वो कहते हैं जीजी, और जो आप बैजूराज महारानी के माताश्री हैं उनको बैजूराज भी जीजी कहते हैं, श्री जी महाराज भी उनको जीजी कहते हैं। तो यहां जब आप पलंग पे हैं उस समय में बड़ी जीजी जो हम सारे सुंदर साथ के हैं, और श्री जी और श्री बैजूराज महारानी के लिए जो जीजी हैं वो आकर के अपना माथा पलंग पे रख देती हैं, और पंजाबी सिस्टम टपले मारना है हर रोज का नियम। श्री जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे टपले मारे माथे पे, ऐसे को उनको मारते हैं। इन समय राधा बाई की राज के पकड़े हाथ सिर को खुजलावने बैठे सेज सेवा के साथ धीरे धीरे सर को सहलाते रहते हैं, जिससे धनी को नींद आ जाए, पर नींद क्या आने वाली। इस तरह वहां पे सेवा होती है। माया राम इताई के बानी सुनावत धाम, माया राम श्री राज राज्य होई के सब पूरे मनोरथ काम। और उस समय में फिर माया राम भाई भी आते। पर एक बात सुंदर सा जी आपसे मैं निवेदन करूं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि महामती प्राणनाथ जी महाराज उस स्थिति में है, उस अवस्था में है, उस एक स्टैंडर्ड पे आ गए हैं कि जिनके अंदर में ब्रह्म तत्व के सिवाय और ब्रह्म की भावना के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज की भी वाणी कहते कि या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदक्षिण रहनो न पावे। इसलिए सभी जगह ब्रह्म की सत्ता में है। जो जड़ तत्व है उसमें भी, जिसको हम पेड़ पौधे को जैसे जड़ कह देते हैं, पर उसमें भी जीव है, पर हम और आपकी अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में, पर है उसमें सर्वत्र। तो जो ब्रह्म दृष्टि जिनको मिल जाता है तो सारे 84 लाख योनि के एक एक दृश्य को उनको दिखता है कि इसके अंदर में ब्रह्म ही ब्रह्म है। सुखदेव ब्रह्म के स्वरूप थे, इसलिए उनको कोई भेदभाव नहीं था। उनके दृष्टि में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। जो ऊपर उठ जाते हैं ना समाज से, जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक समान। उनके अंदर में न जाति है, न क्षेत्र है, न वेशभूषा है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कुछ भी नहीं, सब एक ही है, एक ही ब्रह्म दिखता है उनके। जब वो नामदेव जी गुजर रहे थे तो उन्हें सुन रखा था कि दुनिया के सारे धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तो ये पशु पक्षी हमसे डर करके क्यों बक रहा है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। फिर उनको पता चला कि ये जो मैं कह रहा हूं ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये तो हमारा थ्योरी है, प्रैक्टिस तो हमने किया नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल करना चाहिए। और वहीं पे बैठ गए, और बैठ करके इतने वो ध्यानस्थ हो गए, इतने वर्षों तक ध्यानस्थ हो गए कि जो पशु पक्षी उनसे डर करके भयभीत होकर के भग गया। मनुष्य डरता है पशु पक्षी, वही पशु पक्षी आकर के उनके पास उनको जीभ से चाट रहा है, उनके माथे पे बैठ रहा है, चूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस नामदेव के अंदर में जो प्रेम तत्व था, ब्रह्म तत्व था, उस प्रेम तत्व ब्रह्म तत्व का धीरे 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 क्या होता है, विकास होता है। आज कभी कभी हम लोग समाज में देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हो ना, कि जिसके हमारे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति ही होगा, पर उसके अंदर में ऐसी कुछ प्रतिभा रहती है कि जिस प्रतिभा को बाहर प्रकट होने से अपने आप लोग उसके पास में खींचे जाते हैं। वह खींचता है प्रतिभा, ब्रह्म तत्व खींचता है, प्रेम खींचता है, आकर्षण है प्रेम में। और जब ध्यान अवस्था से नामदेव जागृत हुआ तो वो समझ गए कि जो पशु पक्षी मुझसे भग रहा था डर से, आज वही सब हमारे कोई कंधे पे बैठा है, कोई माथे पे बैठा है, कोई चूम रहा है, कोई कुछ लेके दे रहा है, कोई कुछ लेके दे रहा है, क्योंकि वो प्रेम बट गया, चारों दिशाओं में प्रेम बट गया। और उससे आगे सारे के सारे महामती प्राणनाथ जी भी उस पद्मावती पुरी धाम में जब आप रह रहे हैं तो दोनों प्रकार की सुंदर साजिक सेवा करते हैं। और हर सेवा में झीलना हो तो पर भी दोनों रहते हैं,
आप जब बाथरूम के तरफ जाते हैं तो पर भी हर घड़ी, हर क्षण, हर पल में उनके साथ में दोनों तरह के सुंदर साथ रहते हैं, क्योंकि वो आप दिव्य बन गए। उनके अंदर में कोई वेशभूषा का, कोई लिंग का, किसी भी तरह का भावना नहीं है, वह ब्रह्ममय हो गए हैं। इसीलिए आगे यहां पे आएगा चौथे पहर में भी कि जब आप सो के उठते हैं, छबील दास जल लेकर के आएगा, हाथ धुलाएगा, कुल्ला उल्ला कराएंगे, चिलमची लेकर के वो खड़े रहते हैं। उसमें जो भी कुछ बचता है हर को प्रसाद बांट दिया जाता है। साधारण व्यक्ति नहीं हो, और यदि व्यक्ति होगा साधारण तो उसमें पानी में लोटपोट क्यों करेगा, उस जल को पिएगा कैसे, पिया नहीं जा सकता। पर वह ब्रह्म है। ब्रह्म से जो भी कुछ स्पर्शित होता है, जैसे कल आपने सुना था, उनसे जो भी कुछ स्पर्शित हुआ सब ब्रह्ममय हो जाता है। धन्य श्रीदेवी चंद जी महाराज ने जिस वस्त्र की उपासना की थी वह वस्त्र वस्त्र नहीं, वह वस्त्र ब्रह्ममय था, ब्रह्म की शक्ति आई थी। इसलिए श्री जी ने कहा ना कि ब्रह्मांड उड़ावे अरस कंकरी। विचार करो, क्यों भाई? कंकरी तो कंकर है, वो जड़ तत्व होगा, पर कहते हैं वेद नहीं, वाणी कहती कि ये नहीं। परम धाम के यावत पदार्थ एक कण रज भी वह ब्रह्ममय है, और उस परम धाम से यदि वो एक कण इस जगत के अंदर में आ जाए तो ब्रह्मांड उसका तेज सहन नहीं कर सकता है, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, ये मुश्किल। इसलिए एक एक कण वो ब्रह्म से ओतप्रोत है, ब्रह्म के तेज से ओतप्रोत है, ब्रह्म की शक्ति से ओतप्रोत है। और यहां पे एक की कौन बात करे? हुकुम है, जोश है, आत्मा है, साक्षात राज्य महाराज को हृदय का जो जागृत ज्ञान है वह ज्ञान है, अक्षर की बुद्धि है, कितना हो विचार को। और जो स्वयं उसके अवतार है, तो ऐसे अवतारी पुरुष ब्रह्ममय बन गए हैं। और आज हम सभी सुंदर साथ के पास में भी वही, हम आप भी अपनी शक्ति को बढ़ा सकते, पर उसके लिए चिंतन का जरूरत है, उतारने का जरूरत है जीवन कि जितना हम पारायण पाठ करेंगे उसका भी फल, चिंतन मनन करेगा उसका भी फल, एक एक फल जब हमारे जीवन में उतर जाता है तो फिर शरीर परिवर्तन हो जाता है। उस मेहर सागर के चौपाई से आप समझ लेंगे कि जा को लेते हैं मेहर वाली। इस तरह की वहां पे लीला हो रही है पद्मावतीपुरी धाम में। सुंदर साथ हमेशा तन्मय होकर के गा रहे हैं। और लालदास जी ने कहा कि माया रामित आय के बानी सुनावत धाम, श्री राज राज्य होय के सब पूरे मनोरथ काम। वो बानी सुना रहे, गा रहे हैं, 14 टोलियां मन सब गा रहे हैं वाणी। और जब वाणी गा रहे हैं तो उस वाणी के अंदर में अनंत रस छुपा है। एक एक चौपाई में आपको लगे कि हवे पहला मोजलने कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात, कुछ भी नहीं है। क्या है भाई? अब पहले मोजल की बात कहता हूं। और मोहजल कैसा है? तेता दुख रूपी दिन रात, और दिन वो दुखमय ही दुखमय है। अब बेचारे जो दुख है मोहजल की रात्रि, उसमें आप कहां से सुख लोगे जी? ला सकते? श्री जी ने कहा कि हबे पहला मोहजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। उन्होंने कहा कि नहीं विश्वास हो तो देखो, सुख सनकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फड़ी बली, दुख ही दुख। इतना तक उन्होंने कहा कि दावा नल जो अग्नि है वो रात दिन सबको भस्मीभूष करता जा रहा है, इतना दुख। पर फिर भी उसी चौपाई में कि जो जिसके लिए श्री जी ने कहा कि हबे पहला मोजलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले की भांत, तेनी कितली कहूं विख्यात, उसी में सुख है। दुख चौपाई क्या करे? चौपाई से आपको पता चलता है कि उसमें सुख होगा। तो जिस चौपाई में सुख न हो, वाणी की चौपाई में, उसको पाठ करने से क्या फायदा जी? अब पहले करते हैं हवे पहला मोजलने को बाद महाराज से 17 चौपाई महाराज श्री तमे पहला वांचन करो पछी पारायण नो शुभारंभ। અને એમાં પહેલી ચોપાઈ આવે પહેલા મોજલને को बाद ક્યાંથી સુખ મળવાના? એક એક ચોપાઈના સવાલમાં જવાબ પણ વાણીમાં જ છે कि सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की हम बात करते हैं तो जब तक बुद्धि रूपी दृष्टि से न देख लिया जाए, न पहचान लिया जाए, तब तक की जो श्रद्धा होती है वह अंधश्रद्धा, जिसके लिए श्री जी ने कहा ना
ये दुनिया आद अनादि के चली जात अंधेर, निर्गुण सिरगुण होकर चला जा। जिसको कहा भेड़ चाल, ऊंट कतार, ये सारे चीजें। वाणी की एक एक चौपाई के अंदर में जो सवाल है, उसमें से सवाल जो उठेगा उसका जवाब भी वही। हवे पहला मोहजलनी, हम यही कहते हैं कि हमारे जो 18,000 वाणी है, ये ब्रह्मधाम की वाणी है, इसमें सुख है, शांति है, आनंद है, तो फिर दुख कहां से आएगा भाई? ब्रह्म वाणी है ना, तो उसमें दुख आएगा। पर महामती ने कहा है, तो महामती प्राणनाथ जी उनको समझाते हैं कि दुख में सुख लीजिए, आता है। और दूसरी चौपाई आपने नोट भी किया कि ए इलम अंदर यूं कहता है, बाहर नहीं। ये इलम अंदर यूं कहता है कि निस्वत देखे दुख। निस्वत क्या देख रहा है कि हबे पहला मोजलने को बात तेता दुख रूपी दिन रात। ओ हो, निस्वत यही देख रहा है ना, दुख देख रहा है। पर महावती प्राणनाथ जी वाणी कहती है कि नहीं, ये इलम अंदर यूं कहता है कि जो निस्वत देखे दुख, तीन दुख में बक्का अरस के है हक दिल के कई सुख। राजी महाराज ना हृदय में जे सुख छे, ये सुख छे आ दुख में। इसलिए हबे पहला मोजलनी कहूं, बात में भी दुख नहीं बल्कि सुख ही सुख का भंडार भरा पड़ा हुआ है, इतना आनंद है। और यही वाणी सुंदर सा जी जब गा के सुनाते हैं तो लालदास जी ने कहा कि सब पूरे मनोरथ काम एक नहीं, एक शब्द से दाज उदत है जो कहिए धनेश्वरी धाम। और एक शब्द से इच्छा पूरी हो जाए तो जब हम सारी चौपाई बोल रहे हैं उसमें जो भाव है वह भाव स्पष्ट होता हो तो किस सुंदर साथ की इच्छा नहीं पूरी? हर सुंदर साथ। आज एक मेहर सागर के पाठ करे, किसकी इच्छा पूरी नहीं? पर उस पाठ के साथ में तन्मयता आना चाहिए, भीग जाना चाहिए, तब आनंद है। ऊपर में तैरने से आनंद आता है, कम आता है। डुबकी मारो बीच में, उसमें भी कम आता है। पर नीचे जब बैठ जाओ पानी में उस जमीन को पकड़ करके तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि उसके तुलना में दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी आनंद नहीं। वही आनंद इस वाणी में है। गाते हैं, इच्छा पूरी होती है। श्री लालदास जी कहते कि तंबूरे में तानसो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनत है पौढ़ने के वक्त। पर गाने में क्या होता है? संगीत में कितने चीज होते हैं संगीत में, पर जो ओकल जो कंठ से गाया जाता है ना, उसके साथ में यदि वाजंत्र हो तो उसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सोने में सुहागा। एमज बोला कि बीजू कहीं कहो छो? नहीं, सोने में सुगंध, सुहागा क्या तमें पण ये बात महाराज जी कही दीधું એટલે સાચું જ। सोने में सुगंध आ जाने की बात। इसी तरह से यदि उस वाणी जो गाते हैं उस गाने के साथ में यदि संगीत आ जाए तो किसी ने कहा ना कि संगीत है शक्ति ईश्वर का, हर शब्द में भरा है राम। रागीन सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। कि संगीत के अंदर में वह शक्ति भरा है। एक तो ब्रह्म ज्ञान, और उस ब्रह्म ज्ञान को यदि संगीत में वाजंत्र के साथ में यदि गाया जाता है तो उस समय कहते कि ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है। ब्रह्मानंद का आनंद। संगीत विद्या भी बहुत कठिन। हमारे हिंदू परंपरा में जो दर्शन शास्त्र जिसके अंदर में हमारा संस्कृत के जितने भी धर्म पुराण इतिहास, तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि संस्कृत એટલે बहुत कठिन। पर संस्कृत वाला कहते कि जैसे संस्कृत कठिन है, संस्कृत कठिन छे, ए रीते संगीत पण बहु कठिन छे। महावती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में जिसमें आनंद ही आनंद है, और ऐसे वाणी को लालदास जी महाराज कहते कि तंबूरे में तानसो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनाता है पौढ़ने के वक्त। तंबूरे में तान दे करके जब उस सुर को छोड़ते हैं और चौपाई बोलते हैं, धाम वर्णन का चौपाई, और उसका अर्थ श्री जी महाराज सुनाते हैं तो आनंद में विभोर रह जाते थे सुंदर सा जी। यह है
तीसरे पहर की 6 बार वहां हो जाती। गजपत गहरा पनसो गर्जत है मुखबान, साखी कहावे साख को ले दर्द खरा ईमान। गजपत भाई आवाज मोटा पहाड़ी होगा, और उस तीसरी पहर जो 12 से 3 का है उस समय का जो राग होगा उस राग में वो आलापते होंगे, कितना आनंद आता है। क्योंकि संगीत के जितने भी राग रागणियां हैं और जो हर अलग अलग समय के राग रागनियों के जो उसमें गाया जाए तो आनंद ही आनंद है। अपने यहां महर्षि प्राणनाथ जी की वाणी किरंतन, किरंतन का अर्थ ही है कि जो गाने वाले हो, जिसे गाया गया है। एक एक प्रकरण हर अलग अलग राग से बंधा हुआ है। और महामती प्राणनाथ जी महाराज महामती प्राणनाथ जी कहीं संगीत विद्या सीखने के लिए गए थे, खबर છે તમારે બધાને? કોઈ જગ્યા લેટરમાં, પત્રમાં, ટેલિફોન से कदाच कोई तमने कीधु हશે तो फिर भी कहां से उन्होंने इस वाणी को अवतरण किया? क्योंकि संगीत विद्या हाथ जोड़ करके वहां पे खड़ी कि हे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं आपकी चेड़ी हूं, मैं आपकी सेविका हूं, मुझे आप उपयोग करें। कहीं जाना नहीं पड़ता, खुद उनके पास में आते। हमारे जैसे किसी संत ने कहा कि जहां पे अधिक पैसा को खींचता है, इसी तरह से जो ब्रह्म है वह जीव को खींच लेता है। जो पूर्णतम है वह पूर्ण को भी खींच लेता है, अंश को भी खींच लेता है, कला को भी खींच लेता है, हर को खींच लेता है। कौन? जो पूर्णतम होता है वो। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज पूर्णतम है। ब्रह्म जीव को खींच लेते हैं, ब्रह्म आत्मा को खींच लेते हैं, ब्रह्म प्राण को खींच लेते हैं। ब्रह्म के अंदर में जो आकर्षण है, जो पूर्णत्व शक्ति है, वो चराचर प्राणी को खींच लेते हैं अपने पास। महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में वह शक्ति थी, इसलिए जो इच्छा हुआ उसी राग में वाणी अवतरण होना शुरू हो गया। और उन वाणियों को उन रागों में वहां पे गा करके सुनाया जाता है। साखी कहवे साख को ले दर्दा खरा ईमान, समय जब पौधन के रिझावत हैं राज, अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। धाम धनी की अखंड वाणी जिसको गाने से सारी इच्छाएं दुनिया की पूरी, और परमधाम की जहां की वाणी गायन करें उसका भाव खबर पड़ता हो, स्वरूप खबर पड़ता हो। और श्री जी महाराज के समय में सुंदर साथ वाणी करता हो, मेहर सागर का पाठ करता हो, और मेहर सागर के पाठ करते समय में, मूल मिलावा का पाठ करते समय में वह दृश्य यदि नहीं दिखता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मिलने की अलग बात है, पर दिखना तो बिल्कुल सहज है। इसीलिए आपने कहा कि अखंड वाणी धाम की जाके गाए होत सब काज। मेहर सागर हम लोग किस लिए पाठ करते हैं? किस लिए पाठ करते हैं मेहर सागर? विरह के प्रकरण को हम लोग किस लिए पाठ करते हैं? कि दुख आपत्ति न आए, मेहर सागर के इसके मेहर का उतरे। और जब मेहर सागर को पाठ करने से मेहर उतरना शुरू हो जाए तो हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। जब 6 प्रकरण विरह को हम पाठ करेंगे, उससे दुख यदि दूर हो जाता है तो हमारी इच्छा पूरी होगी। पर जिस समय में स्वयं धाम धनी कजा के तकत पे बैठे हैं, द्वार तोबा का खुला हुआ है, उस समय उनके सामने में यदि कोई वाणी गायन करता हो तो कैसे ऐसे कौन से सुंदर साथ होंगे कि जिस सुंदर साजी को इच्छा पूरी नहीं होती होगी कि मेहर सागर का पाठ करे, और वह मेहर सागर की तरंग मौज लहर दर्शन नहीं होता होगा। राजी महाराज के हृदय तक इस तारतम से नहीं पहुंचता होगा, हो नहीं सकता। क्योंकि ये तरंग जहां से आए हैं, ये तरंग कहां तक ले जाएंगे हमें? आ वाणी प्रगट થઈ છે અક્ષરાતીતના હૃદયમાંથી, એટલે આ તરંગ ખરેખર એ આત્માને અક્ષરાતીતના હૃદયમાં લઈને ઉજકીને ત્યાં મૂકી દેવાના कि जाओ ત્યાં બેસી जाओ, शांत, बंद, लॉक। सागर के तरंग हमेशा खींच करके सागर में ले जाते, ले जाएगा। इसी तरह से यह वाणी वहां तक ले जाएगी और राज्य महाराज के हृदय तक पहुंचा देगा। तो मेहर सागर का लहर क्यों नहीं दिखेगा? मूली मिलावा क्यों नहीं दिखेगा? पुखराज मानिक पहाड़ क्यों नहीं दिखेगा? परम धाम का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं कि जो पक्ष नहीं दिखेगा। नहीं मिलना अलग बात है, पर मैं देखने की बात करता हूं।
पर जब देख लेंगे तो फिर हमें चैन नहीं मिलेगा। देख लेने के बाद में चैन मिलेगा क्या? हमें वस्तु का जरूरत हो, मुझे पता चलेगा कि इनके पास में बहुत पैसा है, करोड़ों है। आज सूर्य नयन को यदि लाख का जरूरत पड़ा और देख लिया तो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएगा कि मुझे तो लेना ही लेना है लाख रुपया, मिल जाएगा, पुरुषार्थ का नहीं। यदि हमने इस वाणी के आधार पे तारतम जो हमें दृष्टि दे रही है, उस तारतम को गायन करने से श्री जी महाराज के समक्ष में महावती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में वही शक्ति है। और आप ऐसे दिव्य दृष्टा है कि जिनके सामने में सुंदर सात वाणी गायन करते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। किसी की इच्छा हुई कि मैं धाम धनी के वस्त्र का वर्णन सुनूं और वो गाते हैं, और उसका भाव जब श्री जी महाराज स्पष्ट करके दिखाते हैं, चरित्र को बताते हैं और स्पष्ट करते हैं, तो वही दिखता है। यदि कोई बहुत बड़ा आदमी किसी विषय के ऊपर में लेक्चरर दो रहा और ऐसे चरित्र चित्रण करे, ऐसे चरित्र चित्रण करे कि बिल्कुल अपने दिल में उतर आ जाए, तो कितनी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है कि वो तृप्ति होती है उससे। और जिस ब्रह्म ज्ञान के अंदर में परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन किया गया हो और श्री जी महाराज उस 25 पक्ष के चरित्र चित्रण को वर्णन करके सुनाता हो, तो कौन सा ऐसा हृदय नहीं हो, ऐसा हृदय होगा कि जिस हृदय के अंदर में वह चित्र झूमता नहीं होगा। सुनाने वाले अक्षरातीत, सुनने वाले ब्रह्म प्रिय कौन हो? अच्छा विद्यार्थी मिले और अच्छा प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर को भी आनंद आता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी को। जो ब्रह्म सृष्टि है, उस ब्रह्म सृष्टि को यदि वाणी गाती है वह और श्री जी महाराज उसको सुनाते हैं, भाव स्पष्ट करते हैं, तो लालदास जी ने कहा कि उनकी सारी इच्छाएं जाके गाय हो तो सब काज, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए गजपत चरने राज के तन मन सौंपिया चित, कुर्बान हुआ श्री राज पर पीछे कछु न राख्या बित। अपने दुनिया के कोई भी संपत्ति नहीं रख करके और कुर्बान हो गए थे, निछावर हो गए थे। उसी समय में कहते हैं कि चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के बचन, दर्द उपजावे दिल को स्यावास कहिए इन। और एक जो इधर से गुजरात से सुंदर साथ गए थे, राजस्थान से पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश के सुंदर साथ थे, कुछ यूपी के जो आगरा वगैरह के सुंदर साथ पहुंच गए थे, पर प्राणनाथ जी महाराज पंजाब में तो गए नहीं थे। पर जो हुक्म से वो सुंदर साथ वहां पे आए, उसमें एक पंजाबी सुंदर साथ जी जिनका नाम था चंद्रावली। तो पंजाबी में अपनी बात होगी कि नहीं होगी? संस्कृत में अपनी बात छे कि नहीं छे? वेद पुराण धर्मशास्त्र गीता भागवत में छे कि नहीं छे? અને વાણી નિશુક્તિ છે કે આજે અક્ષરાતીતના જુબાન ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ દુનિયાના બધા જ ધર્મશાસ્ત્રમાં છે। તો પંજાબમાં જે ધર્મ ગ્રંથો છે એ ધર્મ ગ્રંથમાં પણ આપણી વાણી છે। जैसे कबीर के लिए मैं बहुत कहता रहता हूं कि कबीर में भरपूर मात्रा में अपनी वाणी की पुष्टि की गई है और उसको गाते हैं तब भाव स्पष्ट होता है। इसी तरह से जो चंद्रावली है, श्री जी ने जब इनको पंजाब के जो ग्रंथ था उसमें से दिखा दे कि देखो अपने धाम की बात है, तो पंजाबी भाषा में ये चंद्रावली गाती है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के बचन, दर्द उपजावे दिल को स्यावास कहिए इनको। श्री जी महाराज आराम से पलंग पे लेटे हुए हैं। चंद्रावली जब पंजाबी भाषा में गाते इतने सुमधुर राग में कि दिल में दर्द उत्पन्न होता है। क्यों दर्द उत्पन्न होगा गाने से? इतने सुमधुर संगीत में गाएं, वाणी गायन करें, और जिसके लिए कहा गया है कि वाणी गायन करने से सुख मिलता है, तो यहां कहें कि दर्द उपजावे दिल, ये किससे होगा? इतने सुमधुर राग में गाते हैं, ऐसा भाव वहां पे स्पष्ट होता है। पर मैंने कहा ना कि भाव दिखता है, मिलता नहीं। और जो हम देख रहे हो और मिले न, तो फिर मानसिक दुख होता है, तड़प उत्पन्न होता है कि कब मिले कब मिले कब मिले। और जो न मिले, जैसे श्री जी महाराज के लिए आया कि जब वो इब्राहिम ने कुरान का वह प्रसंग पढ़ के सुना दिया तो 3 दिन तक सेज से आप उठे नहीं। क्यों भाई? इतना दर्द हुआ कि इस ग्रंथ में अमूल्य बात परम धाम की,
और उस बात को सुन करके इतने तन्मय हो गए कि आपको उठने का होश भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आंख से 2 बार आंसू छलकती है, 2 बार। एक बार दुख के आंसू बाहर आ जाते हैं और एक बार अत्यंत सुख, जो जीवन में ऐसा कोई भी सुख नहीं उसके तुलना में, वह सुख जब मिल जाता है, वह आनंद जब आता है तो ये आंख उसको सहन नहीं कर पाती है और बाहर निकल जाता है आंख से। इसलिए यहां पे कहा गया कि वह जब गाते हैं उसमें इतना भाव भरा हुआ है कि गाने के समय में इतना दर्द उत्पन्न होता है। सुंदर साजे दिख रहे हैं पर प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर बंधन है, त्रिगुण का है, 5 तत्व का है। इसका ये प्रारब्ध जब तक नहीं जाएगा तब तक रहेगा, क्योंकि हुक्म ने बांध के रखा है। इसलिए कहें कि ऐसे सुमधुर राग में जब गाते हैं भाव जागृत होता है, मिल नहीं पाता है, तो उस समय में दर्द उत्पन्न होता है। इसलिए श्री जी ने कहा कि दुख से बिरहा, क्योंकि धनिक और बिरहे प्रेम इसक प्रेम जब आइया तब निश्चय मिलिए। तो जब हक की प्राप्ति करनी होगी, राज्य से मिलना होगा, तो उससे पूर्व में ये सारी प्रक्रियाएं होगी ही होगी। वह आत्मिक दुख, मानसिक दुख के लिए कहा गया है। यहां पे कहते हैं नंदु नित 2 बखत गावत आगे पलंके, तब लो तंबुरा बजावत जो लो वारी वाले न पहुंचे। ये सब वहां पे गायन करते रहते हैं। और आपने कहा कि उससे गाने के लिए लगभग सारे सुंदर साथ रहते हैं, टोली बना रखी है, और वो समय समय पर वहां पे गाते रहते हैं और हर तरह की बानी को गाते हैं कि ये कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहि सलाम, 30,000 जाहिर किए 30,000 जो लिखे कलाम, और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फुरमान। सो हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान, सो एक कलामित आय के कहे वास्ते पहचान। ये दावत क़यामत की लावे खलक ईमान, ये सनंद की वाणी मार्फत क़यामत की वाणी, इन सभी वाणियों को भी वहां पे गायन किया जाता था। और इसके बाद कह रहे हैं कि इससे क्या, तो जिन वाणी के गाय से होत हैं दीदार हक, ये सिफत मोहम्मद की होत है तिनसे बुजरक ये काम। और ये 8 पहर में गावत समय समय, एक प्रात मध्याह्न को गावत हैं चित्त से। ऐसे 8 पहर में चालू रहता था। कोई भी एक ऐसा पहर नहीं कि जिस पहर में ये लीला नहीं होती, पर इस एक प्रात मध्याह्न गावत हैं चित्त से, कि 2 ऐसे पहर कि जिसमें वाणी ही गायन हुआ था। प्रातः काल जब सो के उठे तो उस समय में देह क्रिया की बात हुई, बाल भोग वगैरह हुआ, थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, और उस समय भी वाणी गायन होता। दूसरे पहर में कुछ चर्चा वाणी गायन, पर तीसरे और चौथे पहर में तो सिर्फ वाणी का ही गायन किया जाता था, क्योंकि तीसरे पहर में विश्राम के घड़ी, चौथे पहर में जब आप उठेंगे उस समय भी इधर उधर, पर उस समय भी वाणी गायन, और 5वें में आरती संध्या वगैरह, और 6वें में तो फिर चर्चा ही चर्चा। पर ये जो 2 महत्वपूर्ण पहरा है, इसमें वाणी गायन की ही प्रक्रिया चालू है। उसी में सुंदर साथ खूब आनंद लेते हैं। लाल दास के देखिए, और समय चितवन के जब दिन रहे घड़ी 4, और संध्या समय मोमिन करे ये विचार, और समय पौधन के जब रात जाए पहर 2, तब गावे बैठत हैं ताके नाम कहो सोए। अब किन किन पहरों में अधिक वाणी गायन किया जाता है वो कह रहे कि 6ठे पहर में चर्चा होती है, 7वें पहर में भी चर्चा हो, और इसके बाद में 8वें 9वें जो ये पहर है, 8वें पहर 7वें और 8वें पहर, इसमें भी जब राजी पलंग पे गए उस समय फिर वाणी गायन का चालू हो गया। सारे के सारे टोलियां अलग अलग जुथ बना करके और वाणी गायन करने के लिए बैठ जाते हैं, चलते ही रहते वहां पे। और अब लालदास जी यहाँ पे ये गिनाते हैं कि अमृत कुंडली गावही बानी सुंदरवर, और एक एक करके एक बारी बदले की तहाँ संग शंभु गावन हार, दूसरे के लिए की और दूसरी बारी मिने मना और रत्नी। ऐसे 14 टोली 14 है, और हर टोली के लिए इन्होंने कहा कि तीसरी बारी में दयाली बानी गावे, और उनके साथ भी बहुत रहते थे। चौथी में लच्छो आवत संग आसबाई मना, और भी बहुत से सुंदर साथ रहते थे। इस तरह से बहुत सी बारियां सब सारे सुंदर साथ रहते थे। और आपने कहा कि सब
की बारी मिने चंद्रावली देत मदत, श्री राज रिज तिन पर गावने के वखत। जो चंद्रावली थी वो पंजाबी थी, इसलिए भाषा कुछ कम समझती होगी, इसलिए उनको कोई अलग से बारी नहीं था कि जिसमें आपकी इच्छा हो उस बारी में जाकर के आप गा लेना। इसलिए जब इनकी इच्छा होती थी किसी भी बारी में पहुंच करके उनको मदद किया करते थे। श्री राज रिझतिन पर गावने के बखत, जीजी की बारी में ने गावत हैं अगरी, बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। यहां पे दोनों जीजी आ गई, जीजी को भी बारी सौंप दी गई है और जीजी के साथ में जो बड़ी जीजी हैं वो भी रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, दोनों एक ही टोली में। और जब वो गाते हैं तो कह रहे हैं कि और गावत हैं मथुरी भी उनके साथ, कर मेती शामिल रहे गावे हरखो बाय गोर, लालो रातो लड़ेती ये गावत हैं जोर। इनके बारे में ये सारे सुंदर साथ सहयोग दिया करते हैं। और आठवीं, ये सातवीं बारी थी। आठवीं बारी में ने हर कुमड़ी सिरदार, पाखड़ी सुजा काशी, ये सारे सुंदर साथ वाणी गायन करते थे। ऐसे लगभग 14 टोली वहां पे हैं और इन टोली बना करके गाते हैं। लास्ट में कहा कि बनवाली की बारी में ने गावे दोपहर संझा समय, संग संत प्रेम जीजी राम बाई सूरत से। ये सारे सुंदर साथ जो खंभात के बनवाली दास जी, ये जब वाणी गाते थे तो इनके साथ में ये सारे सुंदर साथ रहते थे। और 18,758 वाणी, हर वाणी की एक एक चौपाई को यह 14 टोली बनी है। ये सुंदर साथ ये वाणी गायन किया करते थे। और आप कहते हैं कि सुनने कुरान को इनके कहे कान, कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान, सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, हक मेहर करत हैं सो मोमिन दिल धरी। कि उन कौम में जो सुंदर साथ हैं उनकी भी संतुष्टि के लिए वो वाणी, जिस वाणी का अवतरण हुआ है उस वाणी को भी गायन किया जाता था। लालदास जी की पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, जबराइल जोश धनिका करत सदा रोशन। कि परम धाम से 5 वस्तुओं का अवतरण हुआ है हम सारे सुंदर साथ के लिए। जो 5 वस्तुओं का नाम आप जानते हैं, जानते हैं ना 5 वस्तुओं का नाम? नहीं जानते? हुक्म, जोश, आत्मा, तारतम और बुद्धि, ये 5। और ये 5 इस जगत में इसलिए अवतरण हुआ है कि इससे ब्रह्म प्रियों को लाभ हो, ब्रह्म प्रियों की सुरता परम धाम में जाएं। ऐसा असराफिल आई नूर मकान से, गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिन में, करनाई फुकन को देखत है राह हुकुम, पीठ कुबड़ी करके बीच श्वास न लेवे दम। कि जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि असराफिल, जिसको उर्दू भाषा में कहा गया, वो भी राज्य के हुक्म में है। और वो इंतजार है कि कब हमें उस अक्षरातीत का हुक्म हो और मैं खूब जोर से पीठ को झुका करके, ये जो एक बाजा होता है ना, तुड़ही जिसको कहा गया, यहाँ भी लोग कल 15 अगस्त में बजा रहे थे, स्वतंत्रता दिनी। तो उस समय में बहुत जोर देना पड़ता है, उसमें आवाज, श्वास फूकना पड़ता है, तो उस समय में कमर झुक जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब वो असराफील कुरान को गाएंगे, वाणी को गाएंगे, उनको जब दूसरा सुर फूकना होगा, उसके वह हुक्म के इंतजार में है कि कब हुक्म हो और मैं पीठ कुबड़ी करके इसके बाद में पीठ को झुका करके और उस वाणी को मैं यहाँ पे अवतरण करूं। ये सारे चीज उन्होंने कहा कि ये 5 वस्तु यहाँ पे अवतरण हुआ ब्रह्म सृष्टि के लिए। और इसके बाद हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए सवन, पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिन के, सब गावे देवे इनकी और सब गवाही देवे इनकी, और सिफत कहें ये मुकदमा कयामत का, सो इनो वास्ते होए, मुर्दे किए जीविते इनो वास्ते किया सोई। कि ये सब जितने भी किया कि जो मुर्दा था उस मुर्दा को भी जीवन दे दिया। तीसरे पहर जब धामधनी पलंग पे हैं, वाणी गायन चालू है, उस वाणी को गाने से सुंदर साजी को क्या लाभ होता है? कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पारायण पारायण पारायण, ये पारायण करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है।
वाणी को गायन करने से श्री जी महाराज के समक्ष में इस जगत में जो वाणी का अवतरण हुआ उसका प्रथम सूत्रधार धनेश्वर देवचंद जी महाराज ईसा। उस ईसा के लिए कहा गया कि ईसा के पास में एक नुस्ख है, चमत्कार, कि वो मरे हुए को जिला देते थे। बहुत बड़ा चमत्कार। और उस ईसे के नाम से जो यहां पे आएंगे उनको भी यही करना होगा, तब वो ईसा होगा। धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने कितने मरे हुए को जिलाया? आप यदि किसी से कहते हो कि भाई ईसा ईसा धनेश्वर देवचंद जी को महाराज को कहते हैं, तो ईसा ने तो बहुत सारे लोगों को कहा गया है, आपने देखा तो नहीं है पर जो इतिहास है, उनके पास में एक नुक्स था, जिलाया करते थे मरे हुए को। आपकी वाणी भी कहती। धनेश्वर देवचंद जी महाराज निजानंद संप्रदाय में जे अपना सदगुरु एमने बाइबल कुरान ईसा तरीके संदेश आप्या छे कि ईसा अत्यारे तो नाम ना छे, पर कामना ईसा जे मुर्दा ने जीवन दान आपी सके एवा ईसा 10वीं सदी में आवाना। उस समय में भी ईसा थे, वो भी जीवन दान दिया करते थे। मर गया, प्राण फूंक दिया, खड़ा हो गया, फिर जिया 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष जी गया। पर वो सदा सर्वदा जीवने की ताकत और जिलाने की ताकत उसके अंदर में नहीं। पर ईसा के नाम पे जो इस जगत में अवतरण जिनका हुआ है हादी देवचंद जी महाराज, उनके पास में एक ऐसा नुक्सा कि मुर्दा को ऐसे जीवित करते थे कि वो मुर्दा कभी मरता ही नहीं था। बोलो श्री प्राणनाथ। ये वाणी कहती कि उनके पास, अपने यहां 2 तारतम की बात हुई, तारतम और तारतम का तारतम। तो धनेश्वर देवचंद जी महाराज के द्वारा ले आया गया इस जगत के अंदर में जो तारतम, उस तारतम के अंदर में वह शक्ति है कि मुर्दे को जिला सकता है, कि जो जीव सृष्टि जिसका अस्तित्व तो नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, क्षणभंगुर है, देखने के लिए है, सिर्फ व्यवहार करने के लिए ही है, ऐसे मनुष्य प्राणी जो मरा हुआ है, अस्तित्व विहीन है, कोई उसके अंदर में तत्व नहीं है, उसके अंदर में ऐसा तारतम ज्ञान के वो संचार करेंगे, ऐसा नुक्सा उनको पिलाएंगे कि वो मुर्दा जी जाएगा। मतलब मुर्दा को जी जाना मतलब भीष्ट में अखंड हो जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। पर वाणी एक कंडीशन लगा दी उनके ऊपर कि मुर्दे को जिला सकते हैं, पर उस मुर्दे को हक जात की लीला धाम का दर्शन करवाना मुश्किल था। उस नुक्सा में अखंड कर लेंगे, पर वो मुश्किल था। धनेश्वर देवचंद जी महाराज के पास जो तारतम, उसमें से जो रस की धारा प्रवाहित होती थी, आनंद आनंद हो जाते थे। और वही तारतम जब 18,000 में आकर के प्रकट हुई वाणी में, तो इसमें तारतम भी है, तारतम का तारतम भी है। पर एक तारतम मुर्दे को जीवन दान देता है, प्राण दे दिया, शाश्वत मिल गए। अब इसके बाद में उनको इच्छा हो कि मुक्ति तो मिल गई, पर मैं चाहता हूं कि वो जो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है वह मिले तो बहुत आनंद। जीवन दान मिल जाने के बाद भीष्ट में अखंड होगा, पर जो परम धाम का सुख है वह मुश्किल है, वह मिलेगा तारतम के तारतम से। वाणी करें कि मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते होय, मुर्दे किए जीविते इनो वास्ते किया सोई। इस वाणी के अंदर मुर्दे को जिलाने का भी, और उस मुर्दे जो जी गया है उसको शाश्वत मुक्ति में अखंड आनंद जो अक्षरातीत परमात्मा का, उस आनंद को भी उपभोक्ता वो बने, आनंद उससे भी मिले, वह तारतम का तारतम दे रहा, और उसी वाणी को गायन किया जा रहा है यहां। इसलिए लालदास जी ने कहा
कि मुर्दे किए जीविते इनो वास्ते किया सोई। ये जो सारे दुनिया के हैं मुर्दे, जो अस्तित्व विहीन, जिसमें कुछ भी नहीं, जो सगुण निर्गुण सात शून्य में जाके समा जाता है, ऐसे मुर्दे प्राणी को तारतम पिला करके रस से सिंचित करके और उसको उठा देते हैं भीष्ट में। इसलिए इस वाणी को गायन किया जाता है। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेहर वरी जो उतरी सो भेजी वास्ते हक ये भेजा गया। ये तीसरे पहर में ईश्वर की लीला हुआ करते थे। श्री महामती कहे सात जी सुनो जिकर सुभान, ये सिफत ईमान की लाल जिनको हुई पहचान, और उनको लाभ मिला करता था। तीसरे पहर के बाद 3 से 6 ये चौथा पहर है। 4 पहर दिन का माना जाता है और 4 पहर रात्रि। तो यह जो 3 से 6 का पहर, जिस समय में राजी महाराज परम धाम में भी उठ जाते हैं। कहां पे राजी महाराज दिन में शयन में रहते हैं? उस मंदिर का कुछ नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले क्या 5वीं भूमा छे कि बीजा भूमा? त्रीजा भूमा, बिल्कुल ठीक। तीसरे भूम में नीले पीले मंदिर में शयन कक्ष में 3 बजे आप शयन से उठते हैं और सभी सुंदर साजी को लेकर के कहां निकल जाते हैं? तित्थल। क्योंकि वहां भी सागर है। और जब कभी ब्रह्म सृष्टि की मौज, राज्य की कृपा और उनका मन बन गया कि नहीं आज तो सुखपाल में तो जाते ही जाते रहते, आज तक तरवा में चलना है, सब गाते बजाते एक ही में बैठ करके जाएंगे, तो वो कहां? दूर के सफर के लिए सागर में पहुंच जाए, रांग में पहुंच जाए। और इसके बाद वहीं पे खूब आनंद। और कहीं कदाच संजोग हुआ शुक्ल पक्ष मिल गया तो फिर कहने क्या, पिकनिक वहीं मनाएंगे। आनंद आनंद वहीं पे आनंद है। आप कभी करके देखना। पर वह प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वाणीमय प्रोग्राम हो, भजन कीर्तन सत्संग वाणी ही वाणी। क्या आनंद आता है जब आप उस चौथे पहर में ब्रह्म प्रियाओं को लेकर के सैर करने के लिए निकलते थे। श्री जी महाराज भोजन, जैसे परमधाम में राजी महाराज भोजन करते थे, वस्त्र उतारे, श्री जी महाराज भी वस्त्र उतार करके भोजन किए, फिर पलंग पे आए, शयन हुआ। अब जैसे ही शयन कक्ष से बाहर आप पलंग से उठेंगे तो सभी सुंदर साथ, नींद तो आई नहीं, वाणी की चर्चा ही चल रही थी। पर जो एक विधि है, नहीं तो हुक्म वहां से हो जाए ना, आप सबों के तरफ से, बाईजू राजमहानी के तरफ से ही हुक्म हुआ था, सो जाया जाए, उठ जाया जाए, चर्चा बंद कर दिया जाए। स्नान करने का टाइम, नहाने का टाइम हो गया, बंद हो गया। और कभी कभी लंबी चर्चा हो गई ना, दूसरे सुंदर साथ की प्रार्थना नहीं सुने तो हेडक्वार्टर से ही आदेश निकलता था, वहीं से जारी, बंद। श्यामा है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए आप वस्त्र उतार करके भोजन के बाद कुछ विश्राम, जिसमें वाणी चर्चा। 3 बजे जब आप उठते हैं तो पुनः जिन सुंदर साजी को जो सेवा मिली उस सेवा में आप आ जाते हैं। लालदास जी कहते कि अब कहो पहर चौथे की, बीतक जो सयन, सो दिल के कानो सुनियो, कहत हो रोशन। इत एक पहर पीऊ पौधत, आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लाइया, छबील दास अपने हाथ। ये छबील दास जी पानी पिलाने की सेवा करते हैं, सोते समय भी उठते समय भी। अब जब आप उठे हैं तो श्री राज कोगला करत है, डारत है पिकदान, शंकर आगे धरत है शंख, संग संत दास परमान, मानिक दौरे इन समय हजूर पहुंचे आए, ये सब सेवा में शामिल कछु अरज पहुंचाए। ये सारे सुंदर साथ छबीलदास जी पानी लेके आए। अब उस पानी से उनको कुल्ला उल्ला करेंगे। और उसी समय मानिक दास जहां भी कहीं रहते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं कि सो के उठे हैं। इसके बाद में फिर इनको ले जाएंगे हंसा के घर या घनश्याम के घर या मानिक के घर ले जाएंगे बाथरूम के लिए। सारे सुंदर साथ वहां पे इकट्ठे हो गए अपने अपने सेवा में।
और शंकर वहां पे कि छबिलदास पानी लेकर के आए, पहले कुल्ला कराएंगे, पानी पिलाएंगे, पर जो हाथ धुलवाएंगे, चेहरे को धोएंगे, उस पानी को कहाँ रखना है? तो लालदास जी ने कहा कि शंकर आगे धरत है, संग श्रीराज को गला करत है, डारत है पिकदान, और वो पिकदानी लेके खड़े हैं शंकर दास। आप उसमें हाथ धोते हैं, पानी डालते हैं, शंकर से भी सनेसो मोरछल लिए हजूर सेवा रहन है, ये जो केशवदास कंचन मुठे मोरछल सनेसो सेवे साथ। इस तरह से सारे सुंदर साथ उनको इस क्रिया से निवृत्त किए। अब वहां से उठ के पलंग पे जाएंगे, सब उनको पकड़ के ले जाते हैं, और उसी समय लालदास जी महाराज हजूर में रहते हैं वस्त्र पहलाने में, और महाराजा छत्रसाल जी आ गए तो फिर उनको अब दिव्य श्रृंगार शोभा से उनको विभूषित करते हैं, अनंत शोभा श्रृंगार से। श्रीराज जी महाराज के परम धाम में श्रृंगार है, त्रण श्रृंगार। तो जब आप राज्य महाराज उस परम धाम में दूसरा श्रृंगार कब करते हैं? वो श्रीराज जी महाराज के जैसे वो कहा गया ना कि भाई सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमा है, 14 विद्या जानत है, 14 विद्या निपुण है, पर जानत एको ना है। जैसे वो मुल्ला के लिए भी कहा ना, लालदास जी महाराज से जब शास्त्रार्थ हुआ तो मुल्ला को पूछा कि भाई कितने भांत की पैदाइश है? तो उसने झट से कह दिया, क्या कह दिया? 5। कहा कि दिखाओ कुरान में, नहीं मिला। फिर उन्होंने दिखा दिया, कहा कि ये 5 में से आप कौन हो? पता नहीं चला। तो 3 तो है, पर वो 3 कब कब का? वही बात, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। एक प्रातः काल जब आप तीजी भूम परसाल में એ અત્યારે નહીં, છઠ્ઠા પહોરમાં આવવાના છે, એટલે અત્યારે ચર્ચા કરવાની કોઈ જરૂરત નહીં મળે। अच्छा 6 लगभग 7:15 7:30 के बीच में पहला श्रृंगार जुगल स्वरूप के। दूसरा राज्य का है जब भोजन के समय में वस्त्र उतार देते हैं, और जब 3 बजे उठ के तैयार होते हैं उस समय में एक श्रृंगार होता है, 2। और इसके बाद में जब फिर सैर करके जमुना जी में स्नान होता है, वहां पे दोनों स्वरूप को फिर से श्रृंगार। तो श्यामा जी का श्रृंगार सिर्फ शयन के बाद जो 3 बजे वो नहीं होता है, क्योंकि वो भोजन के समय वस्त्र वही है। राज्य ने वस्त्र उतारा था, इसलिए फिर से उनको वस्त्र धारण करवाया गया। श्री जी महाराज जब भोजन किए, भोजन समय में वस्त्र उतारा गया, पलंग पे गए, आराम विश्राम हुआ, और जब आप उठे तो लालदास जी सेवा किया करते हैं। छत्रसाल जी महाराज जिस किसी भी सेवा में आ गए तो वही करेंगे। और इसके बाद बायजू राज महारानी रुपए के जो डिश बर्तन, उसमें सब जो अनंत प्रकार के आभूषण है वो सब भेजते थे, और अनंत प्रकार के आभूषण से वस्त्र से अलंकृत करके छत्रसाल जी महाराज तैयार कर देते थे, और इसके बाद उनको बैठाया जाता था। और जब कुछ समय जब हुआ ठंडी का समय, तो अब शरीर बूढ़ा, इसलिए उस शरीर के अंदर में कुछ गर्मी आने के लिए उनको काढ़ा पिलाया जाता था। इसलिए वहां पे लिखा कि सेज पे उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, तहां पावरे आगे बिछावत, ये लाल बाई का काम, और बिछावत किसने? एक पावराजित फुमक चंद्रवा बांधत मानिक वायतिद। ये सारी सेवाएं वहां पे हुआ करती थी। और इसके बाद जो वह जल बचा हुआ था, उस जल के लिए उन्होंने कहा कि 2 बाजू पिंडुरी पकड़त बनवाली दास लाल दास थे शामिल, लिए सेवन की दिल आस। वहां से उठाने के समय में पकड़ के उठाया जाता था। और इत चिलमची धर के बैठत है नंदराम, जल प्रसादित बांटत शंकर को ये काम। जो बचा हुआ जल हाथ का, चेहरे का, वो प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता था। हाथ पकालत हित सो छबिल दास रे रे जल, हाथ पोछावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल। इसके बाद जब आप बाहर गए हैं बाथरूम तरफ, वहां से आते हैं, फिर वो हाथ धुलाते हैं और उनको पूछाया जाता है। अमल आरोग्य इन समय इत छबिल दास देवे, फोफल आरोगन को मानिक ले पहुंचावे। जो एक अमल कहते हैं कि जैसे किसी को कहते हैं ना कि भाई इनको चाय के हैबिट है,
इसी तरह से ठंडी का सीजन है और काढ़ा बना करके उनको पिलाया जाता था। जब सो के उठे हैं, देह क्रिया से निवृत्त हो गए, श्रृंगार सज करके तैयार हो गया, तो वही काढ़ा इनको पिलाया जाता था। और पान के बीड़ी के साथ जो फोफल मतलब बारीक बारीक सुपारी, वह सुपारी भी उनको उसमें खिलाया जाता था श्री जी महाराज को। इस तरह की वहाँ पे सेवा चौथे पहर की है। और चौथे पहर में जब लगभग 4:30 बजा, तो 4:30 बजे के समय अब उस दिव्य परम धाम की शोभा श्रृंगार का वर्णन, उसके लिए सिंहासन पे आप बैठते थे और सभी सुंदर साजी को, जो आप जानते हैं श्री राज श्री ठकुरानी जी, हो सकता है तो कल मूल मिलावा के बैठक में भी वही चर्चा होगी, वो आप श्रृंगार शोभा वर्णन करके स्वरूप का सुनाया जाता था वहाँ। और उसी समय में हो जाता था समय 6, और 6 बजने के बाद अब यहाँ पे श्री बाईजूराज महाराज ने भोजन सब तैयार कर ली है। और आप धामधनी के भोजन लीला हो, उससे पूर्व में गौरी आरती, और गौरी आरती के बाद में भोजन, और भोजन के बाद में छठे पहर में राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा